دیکھیں کیا ذوالفقار علی بھٹو موچی دروازے میں، لیاقت باغ میں، ککری گراؤنڈ میں، ناصر باغ میں ذوالفقار علی بھٹو قوم کے سامنے فورن پالیسی رکھتا تھا؟ یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے؟ عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں ذوالفقار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھا ہے۔ دیکھیں اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے۔ پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے۔ ہماری اکانومی خراب ہی صحیح، لیکن نہ ہم امریکن بلاک میں ہیں، عمران خان نے کہا، نہ ہم چائنیز بلاک میں ہیں، نہ ہم رشین بلاک میں ہیں۔ ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان، ہر پاکستانی، ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے، آزاد خارجہ پالیسی کے آزاد شہری۔ شیخ صاحب، آپ کے اتحادی چودھری شجاعت اور دیگر لوگ جو ہیں اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں میں ایم کیو ایم کو جانتا ہوں، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائز، اس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم کھڑی ہوگی جی۔ اور بڑے پیر صاحب، پیر مردان شاہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں 77 میں، اصل تو میں پاپولر سپیکر تو 77 میں تھا، حل کے نشان میں، اب تو مقبولیت میں فرق پڑتا جا رہا ہے، ورنہ اس وقت میں 77 کے الیکشنوں میں اتنا مقبول تھا کہ میرے بغیر جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پیر پگاڑا کے ساتھ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی، خاص طور پر سگار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور میں ان دو لوگوں کا کہہ سکتا ہوں، باقی پنجاب کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لاسٹ 2 کوسچن۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق کی قبر پر جو ویڈیو وائرل، وہ اس کا میں نے آئی جی صاحب کو کہنا یاد نہیں رہا کہ آئی جی صاحب کو میں نے بھول گیا، میں اعجاز الحق نے مجھے فون کیا کہ جو قانون بنتا ہے قبر کی بےحرمتی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ شیخ صاحب، حکومتی اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دن حکومتی اراکین کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ میری جان، 2 دفعہ اس ملک میں عدم اعتماد ہوئے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو مری لے گئے اور مردان ادھر لے گئے، چھانگا مانگا لے گئے اور سوات لے گئے۔ ہم تو یہیں تھے پنڈی والے، ہم تو نہیں گئے۔ 172 آدمی وہ اپنے لائیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر اس ووٹر کی توہین کرے گا جو اس کو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، اسپیکر اس کے خلاف ایکشن لے گا، اس کو نااہل قرار دے گا، اور عوام اس کا سیاسی گھیراؤ کرے گی۔ لاسٹ کوسچن۔ شیخ صاحب، آپ بڑے پراعتماد ہیں، سب پریشان ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور آپ لوگ اتنے پراعتماد ہیں۔ دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کہ بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجوائے کرنا چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی سارے عمران خان کے فالوئرز اسمبلی سے باہر ہوں گے اور عمران خان کی جیت کی خوشی منائیں گے۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے ترین گروپ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے صوبائی وزیر آصف نقوی کا وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ۔ آصف نقوی نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترین گروپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ مسترد کرتا ہوں، 100% عمران خان کے ساتھ ہوں۔ میں ترین گروپ کے اجلاس میں ان کو سمجھانے کے لیے گیا تھا، میں نے ان کو سمجھایا کہ وزیر اعظم سے بیٹھ کر بات کریں۔ مزید کہا کہ ترین گروپ کے ارکان نے مجھ سے اتفاق کیا لیکن اب ملاقات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور ترین گروپ نے دوبارہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس لاہور میں اون چودھری کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کے پیش نظر اہم مشاورت ہوگی۔ ترین گروپ نے دوبارہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس لاہور میں اون چودھری کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا تو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے؟
आज बिल्कुल सियासी मंजरनामे को देखते हुए तरीन ग्रुप का आज तीसरे रोज तो जो है मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज उन्होंने 3 इजलास किए थे, पर उससे एक रोज कबल भी उन्होंने 1 इजलास किया था, और आज दोबारा जो है वो डिफेंस ने ओन चौधरी की रिहायशगाह पर इजलास तलब कर लिया है। और आज जो तरीन ग्रुप है उसने आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातों के हवाले से जो है बाइकाट का ऐलान कर रखा है, और आज तरीन ग्रुप जो है अपना अलग से एक इजलास करेगा ताकि उसमें जायजा लिया जा सके कि उसके ग्रुप के जो 19 सरकार है क्या वो उनके साथ ही मौजूद हैं या उनमें से कोई वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए जाता है। तो आज 1 बजे जो है वो ओन चौधरी की डिफेंस की रिहायशगाह पर ये इजलास होगा, जिसमें वो वीडियो लिंक के जरिए जहांगीर टीम से भी रब्ता करेंगे और सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, अमीनुल हक ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में हो रही है, ये बताना है ज़राए का। काफ लीग के वफ्द में मुनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल हैं। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जा रही है, बताना है ज़राए का। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, दोनों अहम इत्तेहादी हैं और इनकी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमती इत्तेहादियों की जो मुलाकात है उसका मुकाम जो है वो आज एक बार फिर तब्दील किया गया। पहले ये कहा गया कि चौधरी शुजात की रिहायशगाह पर ये मुलाकात होगी, फिर मिनिस्टर इनकलेव में तारिक बशीर चीमा की रिहायशगाह का बताया गया, लेकिन बिल आखिर दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मुलाकात जो है, उनके माबेन मुलाकात जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में शुरू हो चुकी है। और काफ लीग के जो वफाकी वजीर हैं अमीनुल हक, उन्होंने मुलाकात में आने वाले जो तारिक बशीर चीमा काफ लीग के और मुनिस इलाही हैं वफ्द काफ लीग का, उनका इस्तकबाल किया। और ये अहम मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में जो अमीनुल हक हैं उनके घर पर हो रही है, और काफ लीग के वफ्द में मुनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से तबादले ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ MQM का वफ्द जो है वो इस मुलाकात के फौरन बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात करेगा। तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर जो सियासी ऑप्शन हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा, और इम्कान यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो काफ लीग का वफ्द मुलाकात जब करेगा तो उनको ये दावत देगा कि वो अपोजिशन का साथ दे और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका। पीपल्स पार्टी और MQM क़यादत की मुलाकात आज होगी। MQM रहनुमा आज जरदारी हाउस से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। MQM क़यादत से नून लीग JUI रहनुमाओं की भी मुलाकातें होंगी। तहरीक अदम एतबार सिंध बल्दियाती कानून के मामले पर पेशरफ्त का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अरशद से। जी मोहम्मद अरशद, बताइएगा आज की मुलाकात में क्या क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी देखें, बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे उन्होंने कराची का एक मुख्तसर दौरा किया था, जिसमें उन्होंने MQM के मरकज़ वहाँ पहुंचे थे, MQM रहनुमाओं से मुलाकात की थी। GDA जो एक और इत्तेहादी है उनसे जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। मैं सबसे पहले अवामी मार्च के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, इस मुल्क के अवाम को, सिंध से लेके पंजाब से लेके यहाँ इस्लामाबाद तक, बाकी सारे सूबे से जहाँ लोग हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रहे थे, उन सब का शुक्रिया भी कहना चाह रहा हूँ, मुबारक भी देना चाह रहा हूँ कि आप सब ने मिल के इस अवामी मार्च को एक तारीख़ी मार्च बना दिया है। ये मार्च एक तहरीक साबित हुआ है। ये मार्च अदम एतमाद के लिए था और पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर लिया। जिस शहर से हम गुज़रे, जिस गांव से हम गुज़रे, जिस इलाका से हम गुज़रे, जिस सूबा से हम गुज़रे, पाकिस्तान के अवाम ने अदम एतमाद का हक का फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अवाम ने इस सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के साथ हैं। वो इस
मुआशी बहरान से निकलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वो साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन सके। और अब जब पाकिस्तान के अवाम ने अपना काम कर लिया है, पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपना काम कर लिया है, हमारे सारे साथियों ने अपना काम कर लिया है, तारीख रकम किया है, अब पार्लियामान पे बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है कि अवाम की उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। अवाम के मुतालबा को पार्लियामान में बैठे हुए मेंबरान को मानना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहाँ पार्लियामान अपने आप से ये दाग हटाएगा। वो दिन दूर नहीं जहाँ पार्लियामान will remove this black spot on the face of the parliament. And जो गलती इसी पार्लियामान से हुआ था, करवाया गया था 2018 में, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, जितना जल्दी वो सेशन बुलाते हैं उतना जल्द ही वो गलती को दुरुस्त करेंगे। हम ने पुरअमन मार्च की, हमने जमहूरी मार्च की, हमारे ऊपर हमले हुए, हमने किसी पे हमला नहीं किया। हम जमहूरियत का आज भी बात करते हैं, वरना जो अवाम का तादाद जमा हुआ था इस्लामाबाद में और हमारे साथ सफ़र में आए थे, अगर उस वक्त हम मुतालबा करते कि धरना होगा जब तक ये अदम एतमाद पास नहीं होगा, तो वो सारे लोग आज तक उधर बैठ रहे होते। अगर हम उस वक्त मुतालबा करते कि आप आए, हमारे सारे इत्तेहादी आए, ये गैर जमहूरी लोग हैं, इनसे कोई जमहूरियत के यकीन नहीं कर सकते हैं, हम हमला कर देते, तो वो भी करते। लेकिन हमने ऐसे नहीं की और ना ही हम कभी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये हमारा ना तारीख है और ना ये कभी हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मगर मैं 2 पॉइंट्स पे बड़ा सीरियसली पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के मीडिया से, पूरा हुकूमत से, पूरा रियासत से क्लियरली बात करना चाहता हूँ। 2 ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। एक जो हमला आसफा बीबी पे हुआ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला लिटरली जनूबी पंजाब से अपना सफ़र मुकम्मल करके सेंट्रल पंजाब की तरफ भर रहा था, हम वहाँ थे। मैंने बड़ा सब्र दिखाते हुए, और इसलिए कि मैं मीडिया का आज़ादी पे यकीन रखता हूँ, मैं किसी इदारों को, किसी मीडिया का इदारों अब भी अपना निशाने पे नहीं ले आना चाह रहा हूँ। उस वक्त वो लोग भी हमारे साथ थे। अगर मैं गलती से ऐसे कुछ कहता तो खुदा ना खास्ता मेरे कारकुन के जो एक्शंस होते मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर ये वाक़या हमारे लिए काबिल ना बर्दाश्त नहीं है, और हमने वो वीडियो हर तरफ से देखा, हर तरीके से देखा, और हमें जो नज़र आ रहा है कि वो ड्रोन आसफा बीबी और हमारे तरफ अपने आप को इट अलाइंस इटसेल्फ विद अस, और फिर ऐसे अचानक नहीं, in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. हम समझते हैं ये हमारे लिए पैगाम था कि आप जो जमहूरियत बहाल करने के लिए निकले हैं, सियासत करना आपका हक है। आप हमें ज़िंदगी और मौत का धमकी देंगे तो फिर आप उनका कॉन्सिक्वेंसेस को भी खुद बर्दाश्त करें। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक मॉडर्न मुल्क है। हम 2022 में जी रहे हैं।
हमारा हक है कि हम अपना आवाज़ बुलंद करें, हम जिद्दोजहद करें, हम डेमोक्रेटिकली इस रियासत का पुरअमन तरीके से हिस्सा रहें और हमें कोई लाइफ थ्रेट ना हो और ना हमारा ऐसे कोई वाकया हो। और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि होगा। जो ये हरकतें हैं, ये डेस्परेशन की हरकतें हैं। मैंने अवामी मार्च के वक्त भी कहा था कि जितना भी डेस्परेट होगा, जितना भी परेशान होगा, जितना उसको नज़र आ रहा होगा कि अब उसका कुर्सी ख़तरा में है, तो वज़ीर आज़म मज़ीद डेस्परेट मेजर्स लेंगे, ज़्यादा गालियाँ देंगे। अब गाली देने से उसका कुर्सी नहीं बचता। पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब इसका झूठ नहीं चलेगा। ये किसको अब 3 साल हुकूमत में रहने के बाद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सदर ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका टारगेट है। हम जानते हैं कि क्यों आज से नहीं, हमेशा से आपका, जो भी आप जैसे लोग माजी में आए हैं, हमेशा यही पीपल्स पार्टी आपका सबसे पहले नंबर 1 टारगेट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के लिए हर दौर में जदोजहद किया है, हर जालिम से टकराए हैं। हर बार जब भी जमहूरियत खतरा में आया है तो पीपल्स पार्टी सामने आके उसको बचाया है। जब भी मुल्क खतरा में आया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आके इसे बचाया है। इस लेटेस्ट सिलेक्टेड के खिलाफ जो जदोजहद है, जो मुकाबला है, पहले दिन से पीपल्स पार्टी ने आपका मुकाबला किया। हमने आपको एक दिन नहीं छोड़ा, पहले दिन आपको एक्सपोज किया। अब आज तक उस बात को नहीं बोल सकते हो कि पूरा दुनिया अगर आपको सिलेक्टेड से नाम से जानता है तो वो पीपल्स पार्टी ने आपको पहले दिन से करवाया था। आपको मालूम है कि वो पीपल्स पार्टी थी जिसने इस अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन माहिदा, मुआशी माहिदा को PTIMF डील उसका पास होते हुए से लेके आज तक मुल्क भर में एहतजाज किया है। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने ऑपोजिशन को इफ्तार में मुकम्मल इकट्ठा करके आपको प्रेशर में डाला। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने PDM के प्लेटफॉर्म पे ऑपोजिशन को इकट्ठा करके आपको प्रेशर में डाला। मिलके आपको नेशनल असेंबली में उस बार भी शिकस्त दिलवाए थे, अदम एतमाद साबित किया था, तारीख साबित किया था। और आज भी पीपल्स पार्टी है जो सड़कों पे आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसने सारे ऑपोजिशन पार्टीज को, पूरी मुल्क को, पूरी कौम को अदम एतमाद के पेज पे ले आ चुके हैं। और पीपल्स पार्टी की वजह से ना सिर्फ तू, मगर कल परसों की बात, जो आपके बाद भी अगर कोई सिलेक्टेड, कोई आमिर आएगा तो यही पीपल्स पार्टी उनके सामने डट के खड़ी होगी। आपका ये गलतफहमी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले पूरा मुल्क में जमहूरियत का दफा करने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने 10 दिन अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के आपको गलत साबित कर दिया। 10 दिन के लिए पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के सिपाही, अवाम के हकूक के दिफा करने वाले ने अपने घर छोड़े। हर शहर हमारे साथ घूमे, जिस शहर से हम गुजरे हमारा काफिला का तादाद में इजाफा हुआ।
कभी किसी कैंप में रह रहे हैं, कभी कोई छत है, कभी नहीं है, कभी सही खाना है, कभी नहीं है, उनका कोई परवाह नहीं। इस पूरा मुल्क का सफर करते करते वो यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचे। इन मुआशी हालात में आप मुझे बताएं कि कौन 10 दिन अपना घर, अपना काम, अपना मजदूरी, अपना मेहनत छोड़ सकता है और इस किस्म के जालिम रजीम के खिलाफ एहतजाज कर सकता है। पीपल्स पार्टी के जियालों ने इस रजीम को हिला के रख दिया है। इमरान के गाली के अलावा, झूठे इल्जामात के अलावा कोई जवाब नहीं है। कहता क्या है? वही करप्शन का रथ जो गलत बार बार साबित होता है। इससे पहले बहुत लोग हैं, इससे पहले बहुत से लोग आए हैं, यही स्क्रिप्ट सुन सुन के पाकिस्तान के अवाम थक चुके हैं। सदर जरदारी के बारे में 30 साल से सुन रहे हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। उनको मालूम है कि साबित नहीं हुआ, उनको मालूम है कि यही लोग कहते रहे। पत्नी क्या क्या इल्जामात लगाते रहे। सदर जरदारी एक दिन के लिए नहीं झुका। और चिर इनका यही है कि सदर जरदारी को या पीपल्स पार्टी को आप तोड़ नहीं सकते हो। इरादा तो यही था कि सदर जरदारी को जेल में रखा जाएगा, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में रखा जाएगा, ऐसे हालात में रखे जाएंगे जहां अद्वियात से भी महरूम रखा जाए, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम सब खामोश हो जाएंगे। सदर जरदारी इलाज के लिए बाहर चला जाएगा और आपका इस नालायक, नाकाम तरीन, नाजायज हुकूमत को मुसल्लत करने का जो राज है वो जारी रहेगा। मगर ना हम खामोश हुए, ना सदर जरदारी टूटे, और ना वो कहीं बाहर जा रहा है। पहले हम आपका बंदोबस्त करते हैं भाई। पहले हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके जमहूरियत का इंतकाम लेते हुए आपको घर भेजते हैं। ये सारे इल्जामात जो आपने सदर जरदारी पे लगाए हैं, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं, साबित करो अदालत में। 30 साल से हम ये झूठे कहानियां सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, मगर आप इसलिए साबित नहीं कर सके कि इनमें सच नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जब इस मुल्क का चीफ जस्टिस था, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था, ये सारे के सारे केसेस स्विस के टेक्ना के लेके पता नहीं कहां कहां तक, सारे के सारे केसेस ट्रायल हुए सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक। सदर जरदारी और सारे के सारे को अक्यूज बाइज्जत बरी हुए। इसलिए आपको फिर से झूठे कहानियां, प्रोपेगेंडा पे मबनी कहानियां, जाली जीआईटी की बुनियादों पे बयानियां खड़ा करना पड़ा सदर जरदारी को जेल में रखने के लिए, मगर रख नहीं सके। केस में वो ताकत नहीं था। झूठ पे मुबनी मुकदमा नहीं चल सकता। जो आपके ऊपर मुकदमे हैं वो तो सच साबित है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया है कि इजराइल और भारत से तूने फंडिंग लिया। अकबर एस बाबर आपका बुनियादी अरकान ने यह दिखा दिया, साबित कर दिया। अब वो लोग जो आप पार्टी डोनर्स क्लेम कर रहे थे,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا, تیرا جماعت چلایا. شرم کرو, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے, آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے, میں جنت میں جاؤں گا, ان کو جھوٹ بولنے دو. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد, ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. اوہ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران, شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں, ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود, سوری مجھ سے غلطی ہوا, ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے, یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون ہے. اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے, نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے. یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا. یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کے بنیاد پہ ہٹایا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون, نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون. بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے. قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ آپ کے اب جھوٹے باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ سے تجھ سے نجات چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اپوزیشن مل کے آپ کو عدم اعتماد سے حکومت سے نکالیں گے. اور آپ کا وہ حساب کا وقت آ گیا ہے. یہ سارے باتیں جو میں نے کی, یہ دوسرے نے اب آپ کے خلاف ان پہ عمل کرنا ہے. آپ نے جو ہم پارے خلاف کرنا ہے نا, ابھی کرو, کل تجھے موقع نہیں ملے گا.
ہم اس ملک کے عوام کی خاطر, اس قوم کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر تیرے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں نے اپنا ڈی چوک کی تقریر میں بھی کہا تھا, اس سے میرے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. جھگڑا یہی کہ جس طریقے سے آپ 2018 میں آئے تھے وہ ہمارا اس ملک کی جمہوریت کا بحالی کو نقصان پہنچایا تھا. کل ہم آپ کو نکالیں گے, صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے. آپ صاف و شفاف الیکشن سے منتخب ہو, میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا, لیکن جب تک تو سلیکٹڈ ہو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے, نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں. فیصل کنڈی اجاز بھائی کر لیں, آتے ہیں باری باری آ رہے سب کی طرف کیا آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے جو آپ نے تذکرہ کیا آسا بی بی پر حملے کے حوالے سے, اور جس چینل کا وہ ڈرون تھا اس چینل کے مالک کو آپ کی ایک اتحادی جماعت آج کل کی سی ایم شپ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک لیگل ایکشن ہے اس پہ بالکل غور کیا جا رہا ہے. ہم خود لائرز میں رابطے میں ہیں. ہم نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی انسیڈنٹ رپورٹ فائل کیا تھا, اور جہاں تک وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پہ بھی لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا. جہاں تک وہ چینل کی بات ہے, اس چینل نے ہمیں ایک خط بھی لکھا, بڑے معذرتیں بھی کی. جہاں تک ان کے اونر ہیں اس وقت یا پہلے, وہ اس پہ بھی ہم اپنا انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے. ابھی کے لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریر کرتے ہوئے بھی اس وقت پہ بھی ان حالات میں بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس چینل کا نام میں لے لوں, لیکن جیسے ہمارا یہ لیگل پروسیس فالو اپ ہوگا میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا. جہاں تک آپ کا پہلے سوال تھا, میں ہمیشہ اپنا جو تربیت ہے میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا. ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دوں گا. وہ پتہ نہیں کون ہے, میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا. ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے سیاسی جواب تو میں دوں گا, اینٹ کا جواب میں اینٹ میں دوں گا. ستی صاحب وقار ستی چلو صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو نو کانفیڈنس موڈ کی اتنی ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کے جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, کیا وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے یا جو آپ نے حکومتی لوگ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ اکتفا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں نے جو بھی حکومت کا رویے ہیں اس نے ہمیں بہت مدد کیا ہے. حکومت وقت نے جس طریقے سے 3 سال اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو چلایا ہے وہ شاید کسی عامر نے بھی ایسے نہیں چلائے ہوں گے. تو ہمارا بہت ہی اچھا تعداد ہے ممبرز کا. ہم بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوں گے. میرا اپنا خواہش ہے, میرا سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوگا اگر ہم اپنا اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑیں. اس لیے ہمارا کام صرف عمران کو ہٹانے کی نہیں ہے, ہمارا کام الیکٹورل ریفارمز ہی کرنے کی ہے. ضرور آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکیں, شاید آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکتے ہیں, مگر اگر اتحادیوں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس کا پیغام بہت ہی اچھا جائے گا, اور جو اس کا زور ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اور جب ہم فوراً وہ الیکٹورل ریفارمز کے فیصلے لیتے ہیں, میں صرف نون لیگ اور ناراض ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے اور کچھ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلے نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اس ملک کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے اگر ہم سب مل کے یہ فیصلے
ले ले, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीखी हमला भी होगा और हम इस हमले से जमहूरियत की फ़ायदा में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अलमदार चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया मार्च का, आपने कराची से मार्च किया 10 दिन और फिर आपने डी चौक से इख्तिताम किया, तो आप क्या समझते हैं आपका जो मकसद था कि आवाम के अंदर मोबिलाइजेशन और आवाम के मसाइल पर बात करना महंगाई के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं आप उसमें कामयाब हुए हैं और इसके नताइज सामने आएंगे? हमने जो अदम एतमाद है वो इसलिए जो लॉन्ग मार्च है इसलिए फ़ैसला किया कि हमने लॉन्ग मार्च के लिए जाना कि हम अपना सीसी में जब बैठे तो हमारा एक तो जो उस वक्त तक एहतजाजी मुहिम थे उस पर जायज़ा हुआ और हमने चाहा कि जहाँ ये मुआशी बुरान है, जहाँ महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ जमहूरियत पे हमले जो हुए हैं पिछले 3 सालों में वो तारीख़ी हमले हुए हैं, जहाँ अवाम के इंसानी हकूक़ पे हमले हुए हैं, जहाँ हमारा इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश की गई, हमारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, हमारा मीडिया पे मुसलसल हमला हो रहा है, इसका जो हल है वो अवामी ताकत भी है और जमहूरी हथियार है और हमने ये दोनों इस्तेमाल करना है। तो हमने मुहिम इन सारे पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और अदम एतमाद के हक़ में चलाया और उस मुहिम का कामयाबी ये कि हमारा मार्च इस्लामाबाद पहुंचते हुए तो अदम एतमाद हमने नेशनल असेंबली में दाखिल किया, जहां हमारा मुतालबात थे, जहां महंगाई के बारे में मुतालबा कर रहे थे, पेट्रोल और बिजली की कीमत में मुतालबा कर रहे थे, वो तो हमारे मार्च के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने झुक के अवाम की ताकत देख के खौफ में आके 10 रुपया कम और 5 रुपया कम किया। हम जब साउथ पंजाब से गुजर रहे थे तो हमारा ये जोर था, हमारा ये कहना था कि ये झूठे धोखेबाज है, इन्होंने वादा किया 90 दिन में सुबह, दिया आपको सेक्रेटेरिएट, हमारा मुतालबा सुबह है सेक्रेटेरिएट नहीं। जैसे मैं उधर से निकला वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है, ऐलान करता है कि साउथ पंजाब का बिल मैं अब लेकर आ रहा हूँ। अब किसने याद दिलवाया? अवामी मार्च ने, अवाम की ताकत ने, जियालों ने। इस किस्म का बहुत से कामयाबी है, मैं गिनता रहता हूँ तो आपका टाइम चला जाएगा, मगर मतलब कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब मार्च हुआ है। अब ज़िम्मेदारी हमारा पार्लियामेंटेरियंस पे है, हम सब पे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अवाम का मुतालबा था, जो अवाम के एक्सपेक्टेशंस थे, जो अवाम की उम्मीदें थे, हम उन पे पूरे उतरेंगे। सॉरी, एक मिनट भाईजान, नादिर भाई एक मिनट, नादिर गुरामानी का नाम फैसल कुंडी ने लिया है, उसके बाद परवेज शौकत साहब। I can't hear you, Nadir, please. ऑन कर दे, माइक ऑन करें। माइक ऑन। मैं वैसे बात कर लेता हूँ कि जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद आपने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया था और वो था सिलेक्टेड। वज़ीर आज़म से जहाँ पर आपको इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक हैं, वहीं पर आपका गिला सिलेक्टर्स के साथ भी था। तो अब जो तहरीक जमा हुई है वो तो सिलेक्टेड के खिलाफ हुई है बकौल आपके, तो क्या वो सिलेक्टर्स जो हैं वो आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो पीछे हट गए हैं, या उनसे मुतल्लिक अब आपका क्या? जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो आपका तारीख़ गवाह है, आपका तारीख़ गवाह है कि इन चीज़ों के हवाले से हमारा माजी का जो कहानी है वो इतना अच्छा नहीं है। और अभी जो 2018 में हुआ, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा एतराज़ात हैं, वो आपके सामने हैं, वो वही हैं। इस पूरा सिलसिला का जो इम्तिहान है वो हमारा अदम एतमाद है। उसमें हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला, ये देखते हुए कि दिस इज़ नॉट बीन वर्थ इट, कि इस एक शख्स के लिए हम अपने इदारे को मुतनाज़ा नहीं करा सकते,
इस एक शख्स के लिए हम अपना पूरा मीशत को नहीं बैठा सकते। इस एक शख्स के लिए हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट नहीं कर सकते। ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम इस शख्स के साथ नहीं। अब कोई ये फैसला नहीं लेगा कि गैर जमहूरी गैर आईनी स्टेप लिया जाए और इस शख्स को गैर जमहूरी गैर जीनी तरीके से बचाया जाए। इस पूरा सिलसिला के इम्तिहान जल्द आने वाला है, जल्द आपके लिए, मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए। हम देखेंगे कि ये जब एतवाद का वक्त जैसे गुजरता है कि हर किसी का किरदार कैसा रहा है, क्या वाकई ही न्यूट्रलिटी है या नहीं। परवेज साहब आप करिए। बिलावल साहब, ये जो आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं, अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो क्या आप पार्लियामेंट को 1.5 साल चलाएंगे या आप इलेक्शन पे जाएंगे? और नंबर 2 मेरे सवाल ये है कि ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक जारी रहेगा? जहाँ तक हमारा इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में सारे जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जमातें हैं, हम सब का मौक़िफ़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए और सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे वो पूरा हो, हम इलेक्शन आज़ाद इलेक्शंस, साफ शफाफ इलेक्शंस, इक्वल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शंस की तरफ भरे और वो जो सूरत हाल है, जो भी उसको मैंडेट मिले, जो भी अवाम मुंतखब कर गई, उनके पास लेजिटिमेसी होगा, वो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर सकेगा, वो कंसेंसस बना सकेगा जो फिर इन मुश्किलात से, इन मसाइल से हमें निकाल सकते हैं। जहाँ तक कोई इत्तेहाद है, हमारा कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद नहीं है इस वक्त। हम सिंगल पॉइंटेड एजेंडा पे जमा हो चुके हैं कि इस सिलेक्टेड को हमने निकालना है। एनी एक खातून एनी यार एक मिनट भाईजान, एक मिनट एनी आप करें, आपसे ले रहे हैं, खातून से ले लें, पहले एक ही है ना। इस सारे मामले में मरियम नवाज जो है मंजरनामे पे, अच्छा सारे करीब कर लो माइक, इस सारे सिनारियों में मरियम नवाज जो है वो गायब हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका इसमें क्या रोल है? और ना वेरी डिफरेंट नोट, दूसरा सवाल कि चंद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जैसे चंद साहब चले गए थे वापस आ गए, तो फवाद साहब भी चले गए, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे? जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा की बात है, आपको याद होगा जब सदर जरदारी और मैं शहबाज शरीफ साहब के घर पे पहुँचे थे इस पूरा सिलसिले की शुरुआत में, तो मरियम शरीफ साहिबा भी मौजूद था और हमजा शहबाज साहब भी मौजूद था। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है, पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है, ये दूसरा नाम जो आपने लिया ये तो हर किसी बाज़ार में मिलता है। सुहेल साहब यहाँ से भी हो जाए। सुहेल साहब एक सोहेल से कर ले, फिर शाकिर आपसे कर ले, इसके बाद शाकिर आप, इसके बाद प्लीज शाकिर से कर ले, शाकिर सोलंकी, इसके बाद शाकिर सुहेल भाई सवाल करें। यार मेरा MNAs भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमने उनको भी तैयार करना है अदम एतमाद के लिए, तो थोड़ा जल्दी छोटा सवाल कर ले। 63 की नई तशरीह कर रही है कि जो अरकान आपको वोट देंगे हम उनके वोट काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा मेरा ये एक सवाल ये भी है कि अगर किसी अपोजिशन के रुकन ने आपके साथ किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दाएं बाएं हुआ तो इस दफा उसका एहतसाब होगा? नहीं, प्लीज़ सप्लीमेंट्री नहीं, मुझे ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये तो बहुत ही स्टूपिड मौक़िफ़ है हुकूमत का, मैं और का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, बचकाना हरकत है हुकूमत का, ये चलेगा नहीं। एक तो वो समझ रहे हैं कि वो धांधली इन्होंने जो किया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उसका रीप्ले हो सकेगा, वो मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने पहले से ये तय किया था कि उनका गिनती मुकम्मल था, उनको मालूम था कि कितने वोट से हम जीत रहे थे, एंड उससे पहले उन्होंने तय किया था कि हम इतने वोट्स रिजेक्ट करेंगे और इनका कोर्ट्स का चक्रों, ट्राइब्यूनल्स के चक्रों में लगा के
इस मामला को ट्रैक करेंगे और हमारा सिलेक्टेड जो चेयरमैन सेनेट है वो सिलेक्टेड ही रहे। मगर ये अदम एतमाद है, ये वो इलेक्शन नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियर है कि कौन सा स्टेज पे और कब और कैसे डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉजेस अमल में आ जाते हैं। वो उस वक्त के बाद जब उनका वोट गिना जाता है, ये ओपन वोट है, पूरा कौम को नजर आएगा कौन इमरान के साथ खड़ा है और कौन इमरान के साथ खड़ा नहीं है। जब वो नंबर्स पूरा हुए, एक तो हमारा स्पीकर, आई अंडरस्टैंड कि तारीख का सबसे कमज़ोर तरीन स्पीकर रहा है, वो भी इस किस्म का काम नहीं कर सकेगा। करेगा, करता तो जब नजर आएगा ना कि इतने लोग उधर और इतने लोग इधर, वजीर आजम रहा नहीं जो भी वो स्पीकर कहेंगे ना कहें। ये अब इस किस्म का धांधली से नहीं बच सकेगा इंशाअल्लाह ताला। सोलंकी साहब, चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि यही इसी से जुड़ा हुआ है सवाल है मेरा। फर्ज करें हुकूमत नहीं आने देती मुनारिफ अरकान को, या कोई जुगाड़ हुकूमत क्योंकि मुशावरत कर रही है, तो आपके पास काउंटर प्लान इत्तेहादियों का है या कोई और भी प्लान है? बिल्कुल, काउंटर प्लान भी इत्तेहादियों का है। ये पहली बार नहीं है कि हमने इस किस्म का एतमाद से हम गुजरे हैं और हम मुकाबला कर रहे हैं। आप इनकी डेस्परेशन पे यकीन ना करें, इनके गालियों की वजह से परेशान ना हो। जितना प्लान्स वो आपसे शेयर कर रहे हैं ना मीडिया में डालने के लिए, वो सारे प्लान्स उनको पता है कि नहीं चलेंगे। तो ये लिटरली उनका बहुत ही डेस्परेट तरीन, मोस्ट डेस्परेट कोशिशें हैं जो नहीं कामयाब हो। अली फुरकान, कुंटी, मैंने अपने मेंबर्स के पास जाना है। अली फुरकान, नकवी साहब, बिलावल साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या स्पीकर के खिलाफ भी आप अदम इत्तेमाद की तहरीक ला रहे हैं? मेरा ओरिजिनल ख्वाहिश तो मेरा यही था कि हम साथ साथ या पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद भी लेकर आएँ, लेकिन जॉइंट पार्टीज़ ने जो फैसला किया वो सब एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके किया, सारे सीनियर से मशवरा लेके किया, नंबर्स को देख के कॉन्फिडेंस के साथ देख के ये फैसला किया, तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी हम कामयाब होंगे। भाई आप सब से मुझे इजाज़त लेना पड़ेगा, मेरा मेंबर्स इंतज़ार कर रहे हैं। आपको और मौका मिलेगा मुझसे ग्रिल करने के लिए, आई प्रॉमिस यू, और मौका मिलेगा। मेरे अभी यार मेरे इत्तेहादियों भी इंतजार, मेरा मेंबर्स भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे इत्तेहादियों भी इंतजार करें। माफी प्लीज प्लीज। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे, शफाफ इंतखाबात कराएंगे, और कहा कि अगर शफाफ इंतखाबात में आप मुंतखब होते हो तो फिर आपको सिलेक्टेड नहीं कहूँगा।